السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ امبرپیٹ پولیس اسٹیشن لمٹس کے بدکما کنٹا ایریا میں گانجا پیتے ہوئے ایک شخص کو پولیس نے حراست میں لیا۔ موقع پر ایڈیشنل DCP نرسیا اور امبرپیٹ انسپکٹر کرن کمار پہنچ کر اس شخص سے پوچھ تاچھ کی۔ اس موقع پر انسپکٹر کرن کمار نے کہا کہ یووا نشے جیسے گانجے سے دور رہیں۔ انہوں نے انتباہ بھی دیتے ہوئے وارننگ بھی دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی بھی گانجے کا استعمال کرتے ہوئے پبلک کو پریشان کرے گا یا سماجک گتیودھیوں میں شامل ہوگا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ فاطمہ شیرازی لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹرمیچور جو بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ افیکٹس صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ Every parent wants the best start for their child's future. Admissions are now open at Success the School for the academic year 2026 to 27. Our branches are located at Toli Chowki, Sun City, Asif Nagar, Saidabad, Purani Haveli and Shalibanda. Exclusive girls campuses are available at Toli Chowki and Purani Haveli. Admissions open from nursery to grade 10. Limited seats available. Visit the nearest campus today. Success the School, shaping young minds for a brighter future. تلنگانہ میں ڈرگز کے خلاف کریک ڈاؤن کو اور سخت کر دیا گیا ہے۔ CB آنند نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اور ہاسٹل مینجمنٹس کو سخت وارننگ دی ہے۔ تلنگانہ DGP CB آنند نے کہا ہے کہ اگر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے کیمپس میں ڈرگز پکڑے گئے تو اس کی ذمہ داری سیدھا مینجمنٹ پر ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اب تک یہ کہہ کر ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسٹوڈنٹس کی پرسنل ایکٹیویٹیز سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ DGP نے صاف طور پر وارننگ دیتے ہوئے کہا اب اگر کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر ڈرگز ملتے ہیں تو مینجمنٹ کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ CB آنند نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو ہدایت دی کہ اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشن کے وقت ان سے ایک ڈکلیریشن لیا جائے جس میں وہ یہ لکھ کر دیں کہ وہ ڈرگز استعمال نہیں کریں گے۔ پولیس کے مطابق اس قدم کا مقصد کیمپس میں ڈرگ ایبیوز کو روکنا اور اسٹوڈنٹس کو نشے سے دور رکھنا ہے۔ تلنگانہ پولیس کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بھر میں اینٹی ڈرگ آپریشنز کو اور مضبوط کیا جائے گا تاکہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو ڈرگ فری بنایا جا سکے۔ تلنگانہ کی سیاست میں بیان بازی اور تناؤ تیز ہو گیا ہے۔ پلا راجیشور ریڈی نے BJP لیڈر بنڈی سنجے کمار پر سخت تنقید کی۔ BRS MLA پلا راجیشور ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بنڈی سنجے نے KT راما راؤ کے خلاف غیر مناسب زبان استعمال کی۔ انہوں نے کہا میں وہ زبان بولنا نہیں چاہتا جو بنڈی سنجے نے استعمال کی۔ اگر وہ اپنے الفاظ واپس لیں گے تبھی ہم بھی اپنی باتیں واپس لیں گے۔ پلا راجیشور ریڈی نے الزام لگایا کہ بنڈی سنجے کے بھڑکاؤ بیانوں کی وجہ سے ان کے ورکرز نے حملہ کیا اور اس معاملے میں ان کے خلاف کیس درج ہونا چاہیے۔ BRS MLA نے کہا ہے کہ بنڈی سنجے صرف مذہب کے نام پر لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، عوام کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ انہوں نے BRS لیڈر کوشک ریڈی کی سیکیورٹی بڑھانے کا مطالبہ بھی کیا اور کہا کہ پارٹی لیڈر کرشنا کے خلاف بھی غیر ضروری کیسز درج کر کے انہیں پریشان کیا جا رہا۔ تلنگانہ میں سیاسی پارٹیز کے درمیان الزامات اور کاؤنٹر ایلیگیشن کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے جبکہ اس معاملے کو لے کر سیاسی ماحول گرمایا ہوا ہے۔ حیدرآباد میں ڈرگز کے خلاف پولیس نے بڑا کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ ملکاجگیری پولیس نے اسٹوڈنٹ زونز اور ہاسٹلز میں سرویلنس اور چیکنگ کو مزید سخت کر دیا ہے۔ سمتی نے میڈیا کو بتایا کہ حیدرآباد کے دلسکھ نگر اور LB نگر علاقوں میں اینٹی ڈرگ آپریشن کو ٹیکنالوجی کی مدد سے مضبوط بنایا جا رہا۔ پولیس کے مطابق اب ہاسٹلز اور اسٹوڈنٹ ہاٹ اسپاٹ پر لیٹ نائٹ ڈرون سرویلنس کی جائے گی تاکہ سسپیشیس ایکٹیویٹیز اور ڈرگ ریلیٹڈ موومنٹس پر نظر رکھی جا سکے۔ نائٹ پیٹرولنگ ٹیمز کو اسپیشل ڈرگ ڈیٹیکشن کٹس بھی دیے گئے ہیں جن کی مدد سے سسپیشیس افراد کا آن دی اسپاٹ ڈرگ ٹیسٹ کیا جائے گا۔ پولیس نے بتایا کہ 3200 CCTV کیمراز میں سے 70% سے زیادہ کیمراز ایکٹیو ہیں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہیں جس سے ریئل ٹائم مانیٹرنگ ہو سکے گی۔ سرور نگر لمٹس کے ہاسٹلز کا اسپیشل آڈٹ بھی کیا گیا اور ہاسٹل مینجمنٹس کو ہائی ریزولوشن
इंस्टीट्यूशन सीसीटीवी कैमरा लगाने और स्टूडेंट्स के बिहेवियर में तब्दीली नजर आने पर फौरन पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने की हिदायत दी गई। पुलिस ने वार्निंग दी है कि अगर कोई हॉस्टल एंटी सोशल एक्टिविटीज या ड्रग अब्यूज को सपोर्ट करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें प्रेमिसेस सील करना भी शामिल है। और इसके साथ ही पान शॉप्स जो बैंड सब्सटेंसेस बेचने के शक में हैं, उन पर भी खास सर्विलेंस रखी जा रही। पुलिस ने कहा है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत मुलजिमीन के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सीपी सुमति ने स्टूडेंट्स को पैगाम देते हुए कहा है कि एक एनडीपीएस केस भी किसी स्टूडेंट का करियर तबाह कर सकता है और गवर्नमेंट जॉब्स या फॉरेन ट्रैवल पर पाबंदी का सबब बन सकता है। हैदराबाद पुलिस का कहना है कि क्रैकडाउन का मकसद सिर्फ लीगल एक्शन लेना नहीं बल्कि काउंसलिंग और रिहैबिलिटेशन के जरिए यूथ को दोबारा मेन स्ट्रीम लाइफ में लाना भी है। हैदराबाद के सिकंदराबाद इलाके से एक दिल दहला देने वाला कत्ल का मामला सामने आया, जहां एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को एलिजिडली लव अफेयर के तनाज़े पर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक ये वाकया चिलकलगुड़ा के इंदिरा नगर इलाके में पेश आया। मकतूल की पहचान युवान के नाम से की गई है, जो जवाहर नगर का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि युवान का एक लड़की के साथ पिछले 4 सालों से एलिजिड लव अफेयर चल रहा था। लड़की के रिश्तेदारों ने पहले भी उसे दूर रहने की वार्निंग दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक युवान जुमेरात रात लड़की से मिलने इंदिरा नगर पहुंचा था, जहां लड़की के रिश्तेदारों ने उसे पकड़ लिया और चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवान की मौके पर ही मौत हो गई। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी शिफ्ट कर दिया गया और केस दर्ज कर लिया गया। वाक़े के बाद मकतूल के घर वाले लड़की के घर के बाहर एहतजाज कर रहे और मुलजिमीन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही, जबकि इलाके में तनाव के मद्देनजर सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। हैदराबाद से एक अहम सियासी अपडेट सामने आई। एन रामचंद्र राव ने ऐलान किया है कि भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद में एक बड़ा पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट एन रामचंद्र राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी परेड ग्राउंड में एक मैसिव पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रही। पीएम मोदी हैदराबाद आ रहे और 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करेंगे। उन्होंने कहा है कि अवाम में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर काफी जोश और उत्साह देखने को मिल रही। एन रामचंद्र राव के मुताबिक 10 मई को लोग पीएम मोदी का जोरदार इस्तकबाल करने के लिए बेचैन हैं। हैदराबाद में पीएम मोदी के दौरे को लेकर सियासी और इंतजामी तैयारियां तेज कर दी गई हैं, जबकि बीजेपी इस पब्लिक मीटिंग को बड़ा सियासी पावर शो के तौर पर देख रही। भारतीय जनता पार्टी इज ऑर्गेनाइजिंग a massive public meeting at Parade Grounds. He is coming here to inaugurate some projects of worth over 8,000 crores, and on this occasion the BJP state unit, Telangana state unit, has organized this public meeting. We are expecting around 2 lakhs above crowd to attend the meeting, because after the results of the 3 states where BJP had won and 2 states where BJP's vote share has increased, including that of Kerala, the people are very enthusiastic, cadre is very enthusiastic, and they are eager to welcome Mr. Narendra Modi ji on 10th May. On 10th May, apart from other official meetings, he is going to address us, and Telangana people are waiting to welcome Sri Narendra Modi ji. इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर हरदीप सिंह बर्रार का अहम बयान सामने आया। उन्होंने एफटीए इम्प्लीमेंटेशन में तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया। बीएमडब्ल्यू इंडिया के सीईओ हरदीप सिंह बर्रार ने मीडिया से बात करते हुए कहा, इंडिया ईयू एफटीए को जल्दी इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। अगर देरी हुई तो कस्टमर्स अपनी परचेजेस पोस्टपोन कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से ऑटोमोबाइल सेक्टर को काफी फायदा हो सकता है और मार्केट में बेहतर अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। हरदीप सिंह बर्रार के मुताबिक तेज इम्प्लीमेंटेशन से कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस भी मजबूत होगा और इंडस्ट्री ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। इंडिया ईयू एफटीए को लेकर बिजनेस सेक्टर में काफी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, जबकि इंडस्ट्रीज जल्दी फैसले और इम्प्लीमेंटेशन का इंतजार कर रही है।
तमिलनाडु में गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। डी राजा ने गवर्नर से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को हुकूमत बनाने का दावत देने की अपील की। सीपीआई जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, तमाम लेफ्ट पार्टीज ने गवर्नर से कहा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टीवीके को गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट किया जाए। उन्होंने कहा कि गवर्नर को कायमशुदा जमहूरी रिवायात और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस पर अमल करना चाहिए और गवर्नमेंट फॉर्मेशन में रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए। डी राजा के मुताबिक मेजॉरिटी का फैसला असेंबली फ्लोर पर होना चाहिए और डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पूरा एहतराम किया जाना जरूरी है। तमिलनाडु में गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर सियासी बयानात और मशवरे जारी हैं, जबकि गवर्नर के अगले कदम पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। Any hurdle in the process referring to discretionary powers and such things, governor should follow the established practices and conventions on such issues. वेस्ट बंगाल की सियासत को लेकर उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर ओपी राजभर का बयान सामने आया। उन्होंने बंगाल में बीजेपी को मिले मैंडेट पर अपना रिएक्शन दिया। यूपी मिनिस्टर ओपी राजभर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वेस्ट बंगाल के लोगों ने बीजेपी को वहां मौजूद अराजकता और लॉलेसनेस खत्म करने के लिए मैंडेट दिया है। उन्होंने कहा है कि अवाम ने बदलाव और बेहतर गवर्नेंस के लिए वोट दिया है और अब लोग बंगाल में अमन और कानून का राज देखना चाहते हैं। ओपी राजभर के मुताबिक बीजेपी हुकूमत स्टेट में डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी लाने के लिए काम करेगी। वेस्ट बंगाल में सियासी बयानात का सिलसिला लगातार जारी, जबकि मुख्तलिफ सियासी लीडर्स इलेक्शन रिजल्ट्स और गवर्नमेंट फॉर्मेशन पर अपनी राय पेश कर रहे। निश्चित है कि अब सरकार बदल गई है और कल सरकार शपथ लेने जा रही है, नई सरकार। तो जो वहाँ अराजकता था, गुंडा राज था, उसको समाप्त करने के लिए बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है। तो जो हत्या हुई है सुधींद्र अधिकारी के पीए की, तो निश्चित है कि उसका खुलासा होगा। मुंबई में एक ही खानदान के 4 अफराद की मौत का राज खुल गया। तरबूज में मिला चूहा मार जहर। मुंबई के पाईधोनी इलाके में 26 अप्रैल को एक ही खानदान के 4 अफराद की पुरअसरार मौत ने सबको हिला कर रख दिया था। अब इस केस में एक हैरान कर देने वाला खुलासा सामने आया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया है कि फैमिली की मौत फूड पॉइजनिंग से नहीं बल्कि जिंक फॉस्फाइड नाम के खतरनाक जहर से हुई, जो आम तौर पर चूहा मार दवा में इस्तेमाल होता है। ये जहरीला केमिकल न सिर्फ विक्टिम्स के विस्केरा सैंपल में मिला बल्कि उस तरबूज में भी पाया गया जो फैमिली ने मौत से कुछ घंटे पहले खाया था। मरने वालों में अब्दुल्ला, उनकी बीवी नसरीन और 2 बेटियां आयशा और जैनब शामिल थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फैमिली ने घर पर दावत रखी थी जहां मटन पुलाव सर्व किया गया। रिश्तेदारों के जाने के बाद रात देर से फैमिली ने तरबूज खाया। सुबह तक चारों की तबीयत अचानक खराब हो गई। उल्टी, दस्त और बेचैनी के बाद कुछ ही घंटों में सबकी मौत हो गई। कलीना फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट के मुताबिक जिंक फॉस्फाइड पाउडर की शक्ल में होता है और तरबूज का छिलका इतना मोटा होता है कि जहर को बाहर से स्प्रे करना मुमकिन नहीं लगता। इन्वेस्टिगेटर्स का शक है कि किसी ने तरबूज को काट कर उसके अंदर जहर मिलाया हो सकता है। डॉक्टर्स ने ये भी बताया कि विक्टिम्स के कुछ अंदरूनी आज़ा का रंग हरा पड़ गया था, जो जहर की वाज़ेह निशानी मानी जाती है। अब्दुल्ला के जिस्म में मॉर्फाइन के असरात मिलने के बाद पुलिस हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये एक हादसा था या फिर पूरे खानदान को प्लानिंग के साथ निशाना बनाया गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు.
బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే #1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।